Delhiites have woken up to toxic haze engulfing the national capital as firecracker ban imposed by the Delhi government went up in smoke. Crackers were burst all across Delhi on the night of Diwali celebrations, leading to air quality once again nosediving after some improvement that was seen post-Friday rains. During daytime, the 24-hour average AQI at 4 p.m. clocked at 218. Many were hoping that Delhi would see the cleanest air in 8 years on Diwali day. But unfortunately, at bursting of firecrackers picked intensity late in the evening, there was a sudden spurt in AQI levels, with at least 10 locations in Delhi recording an AQI of 999 at midnight. Areas such as Okla, Srinivaspuri, RK Puram, Jawaharlal Nehru Stadium, Anand Vihar were amongst the worst affected, where the AQI hit 1000 mark. What did not help the situation was the uptick in stubble burning in Punjab. After a brief lull, there was increase in farm fires in Punjab, and after the Supreme Court had wrapped the Punjab government on 7th November, the number of farm fires saw a steep decline, with just 6 cases reported on 10th of November and 104 cases on 11th. However, on Diwali day, it again shot up and crossed the 900 mark. Political fireworks continue unabated, with BJP blaming the AAP government for the current air crisis. कहाँ दिल्ली खुशियां मनाती थी, आराम से दिवाली मनाती थी, अब तो करें निकलो भी मत। यही दिया दिल्ली को आपने अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बहुत दुखी है और दिल्ली बहुत जल्दी ऐसे सरकार गलती करे और भजे जनता, ऐसा नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल साहब और गोपाल राय जी, प्रदूषण तो पिछले 15-20 दिन से है, उसका क्या कारण है वो बताएंगे जरा। सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ने के बाद पराली की घटनाएं एकदम पंजाब की क्यों रुक गई, इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, क्योंकि हम तो शुरू से चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली का जो मूल कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का प्रदूषण का है वो पराली है, एमिशन है, व्हीकल एमिशन है और धूल का मिट्टी है। सवाल इसी चीज़ का है कि सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ने के बाद या इन चीज़ों के बाद आप खुद क्यों स्टेप उठाते हैं। आपकी नाकामी हो रही है और जो है दिल्ली वालों की खुशियों को आप दबा रहे हैं, ये हमारा कहना है। Well, we are joined by Tushar Gupta, senior editor Swaraj, and we have Sanjeev Kaushik, political analyst. We also have Deepak joining us from the newsroom. Let's first go to Deepak and take a look at the air quality index. Yes, Deepak. Right, Swati, in our previous bulletin in Pusa, Delhi, the air quality was around 700 to 800, but within a matter of about half an hour, the air quality has dipped further to 891, making it more harder for the people in this region to breathe. And if you have to look at other areas as well, in Paparganj, we have about 700, which is really dangerous level for any human to breathe. In Anand Vihar, the AQI stands at 672, and at ITI Shadra, it stands at 310. But what we have to understand is that why the cracker ban wasn't implemented, because if you see here, these are the clusters where you see all the AQIs are in the hazardous group and people continue to struggle to breathe. In the heart of the national capital, New Delhi, near the US Embassy, the AQI is at 414, which is again at hazardous level. The Mandir Marg also, which we saw in the previous bulletin at 400, has dipped further down to 474. And on the outskirts of the national capital, near Srinivaspuri also, in the previous bulletin it was at around 500 and now it's 554. We can only see that the AQI continues to dip, continues to deteriorate, making it very hard for people to breathe. But it's all the repercussions of bursting crackers and for not implementing the cracker ban, which was ordered by the Supreme Court itself. The Delhi government must take onus on this. Absolutely. Let me in fact go across to our guests and Sanjeev Kaushik ji. I beg your pardon, but this is the situation of most Delhiites right now. We're struggling to breathe. We're struggling to even speak a few words. Who's responsible for this? देखिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 8 वर्षों में हवा की गुणवत्ता कल सबसे बेहतर रही है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि शाम में दिवाली के वक्त लोग पटाखे जलाते हैं, प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए हैं, उसके वजह से इस तरह की गुणवत्ता फिर ख़राब हुई है। हवाओं का यदि तेज़ रफ्तार रहा तो शायद इससे राहत मिले, लेकिन सरकार अपने तरीके से लगातार इस पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? संजीव जी, पहले तो बारिश ने बचा लिया, नहीं पहले तो थोड़ा बारिश ने राहत दे दी, और फिर आप कह रहे हैं कि अगर हवा तेज गति से चली, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है क्या वो निर्भर कर रही है वेदर पर कि मौसम ठीक रहा, बारिश हुई, हवा चल गई तो चलिए राहत अपने आप मिल जाएगी?
इससे पहले भी नहीं, इससे पहले भी और आज भी एक बार पुनः समीक्षा करने वाली है दिल्ली सरकार इसके बारे में कि किस तरह से इस गुणवत्ता को अब क्या समीक्षा होगी? अब क्या समीक्षा होगी? पटाखे जल गए, एयर क्वालिटी इंडेक्स और गिर गया, पोल्यूशन और बढ़ गया, अब क्या समीक्षा तुषार गुप्ता? अब इस समीक्षा का क्या फायदा? अब क्या करेंगे? तो क्या चाहती है? नहीं तो क्या देखिए, आम आदमी पार्टी का तो ये काम है कि वो मीटिंग्स बुलाते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, मीडिया बाइट्स देते रहते हैं, काम कुछ होता नहीं है। 15-20 दिन पहले इन्हीं के मिनिस्टर्स थे जो मीडिया में आके कह रहे थे कि हमें पोल्यूशन के ओरिजिन्स का डेटा नहीं पता, हमें नहीं पता पोल्यूशन हो कहां से रही है, तो हम कोई स्टडी नहीं कर सकते, हम कोई स्टेप्स नहीं ले सकते। 10 नवंबर को बारिश हुई जो दिल्ली वालों के लिए काफी फॉर्चुनेट था, तो एक स्मोक का जो लेवल था वो डिक्रीज हो गया। पर स्वाति, बात ये भी है कि पूरे देश में पटाखे फोड़े गए कल, केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में पटाखे फोड़े गए हैं। पर साथ ही साथ पंजाब में जो पराली बर्निंग थी, जो स्टबल बर्निंग थी, वो भी फिर से पीक हुई है। 10 नवंबर को इंसिडेंट्स कम हो गए थे क्योंकि 10 नवंबर को थोड़े नॉर्थ रीजन में बारिश भी हुई थी, हवा भी चली थी, जिससे दिल्ली की हवा साफ हुई और फार्म फायर इंसिडेंट्स भी कम रहे। पर 11, 12, 13 का अगर आप डेटा देखें, पिछले 48 घंटे का डेटा देखें, द फार्म फायर्स हैव अगेन पीक्ड। अब लोगों की नाराजगी आम आदमी पार्टी से ये है कि आपने 15-20 दिन स्टबल बर्निंग पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपने एक्नॉलेज नहीं किया कि स्टबल बर्निंग से स्मोक का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आपके मिनिस्टर्स रोड शो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपके बाकी मिनिस्टर्स मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, ऑड इवन की बातें हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी, पर काम कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में अब दिल्ली के लोग भी सालों बाद, क्योंकि केजरीवाल जी 5-7 साल से ये बैन लगाते आ रहे हैं, सितंबर के महीने में ही लगा देते हैं, अब लोगों का साफ कहना है कि अगर आप स्टबल बर्निंग पे काम नहीं कर सकते, अगर आप एक कॉन्क्रीट एविडेंस कह रहे हैं कि आपके पास ही नहीं है पोल्यूशन कहां से हो रही है, तो आप हमारे त्योहारों पर बार बार ये जो अटैक करते हैं, एक कल्चरल अटैक करते हैं, कब तक सहा जाएगा? ओके, संजीव कौशिक जी। देखिए, ये उल्टी बातें कर रहे हैं। कल्चरल अटैक, जिस मैंने कहा कि ये जानबूझ के चाहते हैं कि किसी बच्चे ने यदि पटाखे फोड़ दिए तो उसके ऊपर FIR कर दी जाए, पुलिसिया कार्रवाई कर दी जाए, उसके बाद भी हाथ तोबा मचाए और इनके लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण हुई है। ये तो चाहते ही हैं कि किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए और फिर उस केस को वापस लेने के लिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, कि एक नई कहानी रची जाए। सवाल यह है कि अस्थायी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यदि केजरीवाल साहब बाहर हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? देश के पर्यावरण मिनिस्टर कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? मैं कई बार इस बात के बारे में बोल चुका कि 5 स्टेट जो आसपास के जुड़े हुए हैं, सबको मिलाकर के, उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं या उनके जो अधिकारी, उनको मिलाकर के एक गंभीर रूप से मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है लंबे समय तक के लिए। ये केवल इस तरह की स्थितियां जब पैदा होती है, भारतीय जनता पार्टी आते हैं और ये बयानबाजी करके निकल जाते हैं। अरे क्या करना चाहिए ये तो बताइए आप। ठीक है, हम मानते हैं कि दिल्ली सरकार पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगाने में सफल नहीं हो पा रही है, ये पॉल्यूशन का निदान उसके पास नहीं हो पा रहा है, तो आप तो बताइए, आप तो केंद्र में बैठे हुए हैं दिल्ली में, क्या आपके पास अधिकार नहीं है? विशेषाधिकार का इस्तेमाल कीजिए, बताइए कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं ना दिल्ली, तो आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार जानती, दिल्ली सरकार हैज रन आउट ऑफ ऑप्शंस, दिल्ली सरकार आप सुझाव मांग रही है कि आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि हमसे तो हो नहीं पा रहा है। सब्यसाची इज आल्सो विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। सब्यसाची, व्हाट इज द सिचुएशन आउट देयर? Well, absolutely. See, once again, if you can see, the thick smog is covering the national capital, and once again, the people of the national capital have to breathe this toxic air. Few days of relief which we had seen, and on the Diwali day itself, in the past 8 years, the air quality index on the Diwali day was the best. But after the bursting of crackers, now once again the people are breathing this toxic air, and on the other hand, the politicians once again are blaming each other for this particular problem. And now from the BJP side, they are blaming the Aam Aadmi Party that they did not do enough to make sure that the ban on crackers are put out thoroughly here in the national capital. Despite the Supreme Court instruction, bursting of crackers took place here in the national capital, and because of that, the people of the national capital are breathing this toxic air. And again, they are questioning on the stubble burning incident, which are once again increasing in Punjab. We had seen that from the central government as well. Flying squad was sent in Punjab to make sure that the stubble burning cases reduces.
We had seen that in a couple of days, the stubble burning cases in Punjab had come down. Once again, those cases are increasing. And you can see on your screen that the entire national capital is covered in thick smog. In the morning, the visibility was quite poor because of the thick smog, and the AQI in some of the places in the national capital has reached to the hazardous level, and it will continue to stay like this if there is no rain or flow of wind. Then the people of the national capital will continue to breathe this toxic air. What is the solution then? Tushar Gupta, Aam Aadmi Party says BJP is only interested in politicizing the entire issue. केवल राजनीतिकरण बीजेपी करना चाहती है. देखिए, आज आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्रैकर बैन दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया था, भाजपा ने नहीं लगाया था. सितंबर में अरविंद केजरीवाल जी ने, बिफोर द स्मोक सीजन, बिफोर द फेस्टिवल सीजन, अरविंद केजरीवाल वाज द वन हु इम्प्लीमेंटेड अ फायर क्रैकर बैन. नाउ probably there must have been a rationale behind that decision. कुछ सोच समझ के ही डिसीजन दिया होगा. तो आप अगर सितंबर में डिसीजन ले रहे हैं, आप नवंबर में आके ये नहीं पूछ सकते बताइए क्या करना है. And number two, we have seen the smog over the last 15-20 days, Swati. Let's not confuse it for a Diwali phenomena. The one straightforward solution to this is that the Punjab government, which is responsible for the law and order in the state, which is responsible for the agriculture in their state, under Bhagwant Mann, they need to step up and find a solution to stubble burning. Either engage with the private sector who can help with the disposal of stubble, whatever they want to do, because Arvind Kejriwal apparently until last year had all the options on the table as he used to tell in the media. But काम तो देखिए आपको ही करना है. या तो आप हाथ खड़े कर दीजिए पंजाब में भी, दिल्ली में भी, कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, सेंटर काम करे, लोग काम करे, हम कुछ नहीं कर सकते. पर अगली तो आपको ही काम करना है. पंजाब में स्टबल बर्निंग आपको ही रोकनी है. आई हैव जस्ट ट्वीटेड आउट द मैप आल्सो ऑफ द लास्ट 72 आवर्स. द फार्म फायर इंसिडेंट्स हैव पीक्ड. And now again we all are sort of slaves to the weather. We have to wait for the rainfall or for the winds to move and for the smog to be carried away by that. But until then, until for the next year, Arvind Kejriwal and his government in Punjab and Delhi, they have to find a solution to stubble burning. And since the panelists, but what is going to be the solution? क्योंकि संजीव कौशिक जी कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप बार-बार दिल्ली वासियों को इस स्थिति से नहीं आमना सामना करवा सकते. बार-बार आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. जो भी आप कीजिए, आप इसको बंद कीजिए, आप इसको रोकिए. तुषार भाई अभी कह रहे थे कि यदि दिल्ली सरकार दोनों हाथ खड़ा कर दे तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे. तो ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लिया कि दिल्ली सरकार ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए. क्या करेंगे आप? जो करेंगे वो बता दीजिए. आप वही दिल्ली सरकार कर ले अभी. लेकिन ये सोल्यूशन नहीं बताएंगे. मैंने फिर कहा कि ये दिल्ली के लोगों से ये बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ये बताया तो सही. सोल्यूशन क्या ऐसा कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो बताया तो सही. अरे स्टबल, आपको परेशानी है कि दिल्ली की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो दिल्ली की जनता से आप बदला ले रहे हैं. पंजाब की जनता ने आपको घुसने नहीं दिया तो पंजाब की जनता से आपको, पंजाब के किसानों से परेशानी है आपको. अरे पंजाब के किसानों के बारे में कभी सोचिए तो सही. जो स्टबल बर्निंग की बात हो रही है, जो पराली जलाने की बात हो रही है, उसके बारे में अदालत ने क्या कहा? अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि रुकवाइए. नहीं, अदालत ने क्या कहा? अदालत ने क्या कहा कि यदि पंजाब में पराली, अदालत ने भी यही कहा कि स्टबल बर्निंग रोकिए. सबसे पहले वहां अदालत भी यही कह रही है स्टबल बर्निंग रोकिए. संजीव कौशिक जी, अदालत ने तो ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम खत्म कीजिए. ये भी कहा अदालत ने कि जब दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी है तो फिर दिक्कत क्या है? कोर्ट ने तो ये भी कहा ना कि अगर दिल्ली में और पंजाब में एक ही पार्टी तो दिक्कत क्या है? दिल्ली से निकलने के बाद में सीधे पंजाब पहुंच जाना है. दिल्ली से निकलने के बाद सीधे पंजाब में पराली नहीं जल रही है क्या? पंजाब में पराली जल नहीं रही है क्या? पंजाब में पराली जलने के मामले में इजाफा नहीं हुआ है क्या? दिल्ली से निकले और पंजाब से निकले तो दिल्ली. हाँ, क्योंकि वहाँ आपकी सरकार, अभी वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए वहाँ पराली नहीं जल रही. लेकिन जब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सारा धुआं पंजाब से ही आ रहा था. आम आदमी पार्टी के आते वो रूट डाइवर्ट हो गया. मैंने कभी नहीं कहा पराली नहीं जल रही है. पराली वहां पे जल रही थी. अदालत ने यह कहा कि वहां पे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, दूसरे तरह की खेती करे, पराली
समस्या पैदा ना हो, वहां धान की खेती कम की जाए, दूसरे फसलों पे एमएसपी दी जाए ताकि लोग प्रोत्साहित हो। ऐसे खत्म यही तो करने की बात solution है। है। वहाँ पे जो मशीन है जिसको खाद बनाने की बात हो रही MSP है, ये हुआ क्यों नहीं? ये हो क्यों नहीं रहा है? इसके लिए अनुदान देखिए, ये वॉर फुटिंग पे होना चाहिए था और ये तैयारी उसी वक्त नहीं होती है कि जब सर्दियां आ गई हैं, दिल्ली में पराली जल रही, तब बैठ करके समीक्षा हो। हर साल यही होता है, मुझे लगता है इंतजार होता है, फिर समीक्षा करेंगे। उस वक्त राज्य में कोई और पार्टी की सरकार थी तो सारी समस्या वही थी, अब हमारी सरकार है तो चलिए देख लेंगे, समीक्षा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कौशिक एंड तुषार गुप्ता फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टू Sabyasachi as well for getting us the details. With that, a quick break.